class, what we discussed about the characteristics, competency which required to become an entrepreneur. We discussed about all these topics, as well as we discussed about the Mamaearth success story, how it was started, parents, what is the consciousness and the concern of the parents, convert them into entrepreneurs. We studied about that. In today's class, what we are going to study, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स एंड मैनेजर. तो ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है, एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है और एंटरप्रेन्योर्स और मैनेजर में क्या डिफरेंस है, वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक टुडे. राइट, क्लियर हो गया. इसके अलावा जो आज की हमारी स्टोरी है, दैट इज about Byju's, and I guess everyone, you all knows about Byju's. सबको Byju's के बारे में पता है? Yes ma'am. Yes ma'am. How many of you are using it even? कितने लोग हैं जो Byju's के कुछ PDFs वगैरह देखते हैं, चेक करते हैं? How many of you? जो मैम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं Byju's का. Very good, very good. So how it was started and how it become one of the, बोल सकते हैं, successful e-learning platform. We will discuss about this, right? So let's start with our topic, that what is the difference between entrepreneur and intrapreneur. Before elaborating every point, I just want to tell you the basic difference. देखिए, entrepreneurs वो होते हैं जो अपने business को शुरू करते हैं, creativity को use करते हैं, risk लेते हैं और अपने skill को, knowledge को एक proper, एक successful business में convert करते हैं, है ना. तो they are entrepreneurs. But when we are talking about the intrapreneurs, their work is similar like the entrepreneur. They are also creative, but they are working under some organization. यानी कि किसी organization में एक creative team होता है, आप लोगों ने सुना होगा, खास करके marketing में, ठीक है. तो what they are doing, they are making the different taglines, advertisement for the various products, right? So they comes under the creative teams. Their work is research. Their work is to use innovative ideas. So they are entrepreneur, right? तो difference, basic difference क्या है, समझ में आ गया? काम लगभग दोनों का सेम है. They both are creative, innovative, but one is totally independent, बिल्कुल independently काम कर रहा है, and the second one is doing a work under the organization. किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम कर रहा है, एक डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन करता है कंपनी के लिए. क्लियर हो गई बात? इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस समझ में आया? इंट्राप्रेन्योर, अगर किसी को एंटरप्रेन्योर समझ में आ रहा है तो इंट्राप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर में समझ में आया डिफरेंस? क्लियर हो गया? Yes ma'am. Basic difference is clear. Okay, so let's start with writing some basic point. If you want to write, किस तरीके से लिखना है आप यहाँ पर लिखिएगा. बेसिस, ये पॉइंट पहले करवाया है मैंने. Yes ma'am, आपने करवाया था मैम. एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर अगर आप लोगों ने कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे सिर्फ सुन लीजिए. इसमें पॉइंट्स लिख लिया था आप लोगों ने? एक दो पॉइंट लिखे थे मैम. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. तो एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? दे आर द पर्सन हु एस्टैब्लिश हिज ओन कंपनी एंड शोल्डर्स द रिस्क एंड रिवॉर्ड. अपने रिस्क को, रिवॉर्ड को, अपने बिजनेस को रन करना, बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना, रिस्क टेक करना, दैट इज द, दे आर एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर में लिखिएगा, इट रेफर्स टू द पर्सन who works in a company. यहाँ पर कंपनी में वो काम कर रहा है and is vested the responsibility, VESTED, W वाला नहीं है, vested, ठीक है, vested the responsibility of carrying out innovation in products operation. नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो इनोवेशन, क्रिएटिविटी, रिसर्च की रिक्वायरमेंट पड़ती है, entrepreneurs are doing that. ठीक है, they are working under a company. Entrepreneur, they are not basically working under a company. They are totally independent. They are establishing their own venture or the business. So that is the basic difference. Second point is what is the objective. अब दोनों को ऑब्जेक्टिव क्या है? एंटरप्रेन्योर का ऑब्जेक्टिव क्या है और एंटरप्रेन्योर का ऑब्जेक्टिव क्या है? सो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू इन द मार्केट. मतलब उनका मेन ऑब्जेक्टिव, एम होता है कि कुछ नया बेटर प्रोडक्ट जो है वो हम सोसाइटी को प्रोवाइड करें. सो देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंट्रोड्यूस समथिंग इन द मार्केट
दैट इज न्यू फॉर द सोशियो इकोनॉमिक वैल्यू, और जिसका कुछ मार्केट में वैल्यू हो, ठीक है, लोग उसको यूटिलाइज करें, यूज करें, आइदर इट इज अ सर्विस और गुड्स। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये एंटरप्रेन्योर का ऑब्जेक्टिव होता है। एंटरप्रेन्योर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि दे वांट देयर कंपनी टू बी सक्सेसफुल। वो अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। वो खुद सक्सेसफुल तो बनेंगे ही, ऑब्वियसली द इंडिविजुअल गोल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द कंपनीज गोल, लेकिन देयर मेन एम इज टू प्रोवाइड बेटर टू द कंपनी, मतलब कंपनी के लिए कुछ बेहतर करना, कंपनी को मार्केट में सस्टेन करवाना, और उसके अलावा कंपनी का परफॉर्मेंस बेटर करना मार्केट में। तो ये एम है एंटरप्रेन्योर का। आ रही है बात समझ में सबको? क्लियर हो रहा है पॉइंट? ठीक है। एंटरप्रेन्योर अपने लिए यहाँ पर एक वैल्यू क्रिएट करना चाहता है, कुछ बेहतर देना चाहता है सोसाइटी को, ठीक है। उसका मेन एम होता है पहले गोल अचीव करना किसी भी हाल में, वेलफेयर भी, कई बार एंटरप्रेन्योर्स वेलफेयर के बारे में भी सोचते हैं, राइट। लेकिन एंटरप्रेन्योर का मेन एम होता है कंपनी से रिलेटेड, कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करे, कंपनी बेटर परफॉर्म करे मार्केट में, कंपनी न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए। तो उनका जितना भी गोल है इट इज ऑलवेज रिलेटेड विद द कंपनी। आ गई बात समझ में सबको? क्लियर हो गया? सेकेंड पॉइंट। नाउ व्हाट इज द थर्ड वन? व्हाट थर्ड जो बेसिस होगा, दैट इज स्टेटस। स्टेटस क्या है, यानी कि एंटरप्रेन्योर का क्या स्टेटस है, ठीक है, और आपके एंटरप्रेन्योर का क्या स्टेटस है। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका स्टेटस एक तरीके से स्टार्टअप, मतलब बिजनेस को फाउंड करना होता है, तो दे आर फाउंडर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को स्टैब्लिश करना, बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना सारे उनके कंधे पर होता है, ठीक है। तो दे आर फाउंडर ऑफ द बिजनेस, मतलब वो एक कंपनी के क्या है, फाउंडर है। क्लियर हो गई बात? अब जो आपके एंटरप्रेन्योर हैं, काम तो वो भी इनोवेटिव वाला करते हैं, इनोवेशन करते हैं, क्रिएटिविटी है, लेकिन स्टिल दे आर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। यानी एक कंपनी में आप कार्यकर्ता है, काम कर रहे हैं, तो दे आर एम्प्लॉइज। एंटरप्रेन्योर्स एम्प्लॉय होते हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटरप्रेन्योर्स, दे आर द फाउंडर ऑफ द कंपनी, ठीक है, दे आर द फाउंडर ऑफ द कंपनी। यू विल नेवर सी कि कोई भी अगर आपके कंपनी को, मतलब कोई भी स्टार्टअप जिसने शुरू किया हो, कोई भी फाउंडर है, तो उसके नाम के नीचे हमेशा लिखा होता है फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दिस कंपनी। देखा है ना? बट द सेम स्टेटस यू विल नेवर एबल टू सी विद द एंटरप्रेन्योर्स बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद द कंपनी। एंड एंटरप्रेन्योर में क्या है, कंपनी इज एसोसिएटेड विद द पर्सन, क्योंकि एक पर्सन ने कंपनी को शुरू किया। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया यहाँ तक पॉइंट? क्लियर? फाउंडर भी अलग हो सकता है और सीईओ भी अलग हो सकता है। बिल्कुल, अगर वो चाहे तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पोजीशन को भी दे सकता है किसी और को, बट ही इज ऑलवेज अ फाउंडर ऑफ द कंपनी, जिसने कंपनी को खड़ा किया, कंपनी को स्टार्ट किया, कंपनी को बनाया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया बात? समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ एंटरप्राइज। नेचर ऑफ एंटरप्राइजेस, नेचर ऑफ एंटरप्राइजेस, नेचर ऑफ एंटरप्राइजेस। अच्छा, एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो रिस्क टेकर होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो उनका एंटरप्राइज है वो प्रॉपरली एस्टैब्लिश्ड है या नहीं है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कई बार वो अगर उनकी कंपनी लॉस में जा रही है तो इट मींस कि उनका जो एंटरप्राइज है, मतलब कह सकते हैं कि वो लॉस में चला गया, तो उनका जो इनकम है दैट इज नॉट रेगुलर एंड ऑल। बट इसको मैं नेक्स्ट पॉइंट में कवर करा दूं क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। नेचर ऑफ एंटरप्राइजेस में लिखिएगा, जो आपकी स्टार्टअप्स होती है या जो एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा स्टार्ट की हुई बिजनेस होता है वो रिसेंटली स्टैब्लिश होता है, यानी तुरंत हाल फिलहाल के स्टैब्लिश्ड होते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो रिसेंटली स्टैब्लिश होता है, नया शुरू करते हैं, हाल फिलहाल में स्टार्ट कर दिया एक एंटरप्रेन्योर्स। और आप देखते होंगे नए बिजनेस हमेशा शुरू होते रहते हैं, तो रिसेंटली स्टैब्लिश्ड। और जो आपके एंटरप्रेन्योर्स में, जो एंटरप्रेन्योर्स जिस भी कंपनी में काम करते हैं, ज्यादातर वो कौन सी कंपनी होती है, जो मार्केट में वेल एस्टैब्लिश्ड होती है, यानी मार्केट में ऑलरेडी उनका पोजीशन होता है, बहुत पुरानी कंपनीज होती हैं, ओल्ड कंपनीज होती हैं। ठीक है,
स्टार्टअप्स का ट्रेंड तो ऐसे काफी सालों पहले आ गया था। स्टार्टअप्स की जो स्टोरी है वो अभी की नहीं है, 18th सेंचुरी से भी पहले की है, लेकिन ट्रेंड में इंडिया में तो अभी फिलहाल है 21st सेंचुरी में। ठीक है, सो वी कैन से दैट नेचर ऑफ एंटरप्राइजेस में रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड इन एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स में लिखिए वेल एस्टैब्लिश्ड इन द मार्केट। ठीक है, स्टेबल होती है इस तरीके की जो कंपनीज हैं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सोर्स ऑफ कैपिटल। अब सोर्स ऑफ कैपिटल की बात की जाए तो सोर्स ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट किसको पड़ेगी, एंटरप्रेन्योर को या एंटरप्रेन्योर को? एंटरप्रेन्योर को। एंटरप्रेन्योर को, ऑब्वियसली, क्योंकि एंटरप्रेन्योर तो एक कंपनी में एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहा है ना, तो अपना बिजनेस तो वो शुरू कर नहीं रहा है, वो अपने किसी ऑलरेडी स्टैब्लिश बिजनेस में वर्क कर रहा है, राइट। सो सोर्स ऑफ कैपिटल में जो एंटरप्रेन्योर्स है वो खुद से एक्वायर करते हैं फंड को, कैपिटल को फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज बैंक में मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द लोन फॉर द स्मॉल एंटरप्राइजेस, राइट। उसके अंडर में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी है, नाबार्ड है, नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट आपका बैंक है, वो भी आपको प्रोवाइड करता है लोन। उसके अलावा बहुत सारे बैंक है, ऐसे IDFC, there are multiple banks who are basically providing loan for the small industries. So they can acquire loan through the government scheme and through the bank, or they can also get the fund from their friends, relative, known. और अगर उनका बिजनेस बेटर होता है तो they can also get the angel investor. अब एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगी, थोड़ा सा बता देती हूँ। एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो आपके बिजनेस में अपना कुछ परसेंटेज लगाते हैं और उसके बदले उसका प्रॉफिट में वो कंट्रीब्यूशन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने 10% शेयर में पैसा लगा दिया आपके बिजनेस के लिए, इन्वेस्ट कर दिया अपने पैसे, अब आप मुझे, ऐसे नहीं होता है, मतलब मैंने कुछ पैसा लगाया, मैंने 1 करोड़ लगाया और आपके बिजनेस में 10 करोड़ कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, 1 करोड़ मैंने लगाया तो मतलब मैंने 10% एक तरीके से आपके बिजनेस में फंड कंट्रीब्यूट किया। तो शेयर्स अगर मिलेगा तो 10% शेयर आप मेरे नाम करोगे ताकि मुझे प्रॉफिट मिलता रहे आपकी कंपनी से, तो दे आर नोन एज एंजल इन्वेस्टर्स। तो एंजल इन्वेस्टिंग के थ्रू दे विल गेट द फंड। तो एंटरप्रेन्योर्स जो है वो पूरे फंड का जो जुगाड़ होता है, फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा मेंटेन करना, वो सब एंटरप्रेन्योर खुद करता है। बट एंटरप्रेन्योर के सिचुएशन में कंपनी इस चीज पे काम करता है। एंटरप्रेन्योर एक सिंगल इंडिविजुअल एम्प्लॉय के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फंड को जनरेट करने की, और खासकर एंटरप्रेन्योर इज नॉट बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द फंड फॉर द कंपनी। इट इज द वर्क ऑफ द कंपनी और इट्स डिपार्टमेंट, हो सकता है उनके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, वो ये काम करेगी, बट एंटरप्रेन्योर ये वर्क में इन्वॉल्व नहीं होगा। क्लियर होगी बात, समझ में आया सबको? यस क्लियर हो गया? ओके, ठीक है, चलिए और कुछ भी इसके डिफरेंसेस, मूव टुवर्ड मोर डिफरेंसेस बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स वी अंडरस्टैंड अबाउट। अच्छा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ये भी लिख लीजिएगा। अगर हम बात करें डिपेंडेंसी की तो आपके एंटरप्रेन्योर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, वो कोई भी पॉलिसी नॉर्म्स ये सबसे बंधे नहीं होते हैं। डिपेंड होंगे मैम। हाँ, और एंटरप्रेन्योर्स डिपेंडेंट होते हैं, कंपनी के हिसाब से ही उनको चलना पड़ेगा, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द अदर डिफरेंसेस। और यहाँ पर रिस्क की बात की जाए तो रिस्क जो होता है वो आपका एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज्यादा कैरी करना पड़ता है, बिकॉज बिजनेस अगर लॉस में भी गया तो लॉस को भी कंपनसेट खुद एंटरप्रेन्योर्स करेंगे। बट एंटरप्रेन्योर्स से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट द रिस्क टेकर। क्लियर हो गया? सैलरी के बेसिस पे अगर डिफरेंस करें डिफरेंट दोनों में, तो सैलरी आपके एंटरप्रेन्योर्स की नॉट फिक्स्ड, एंटरप्रेन्योर्स की फिक्स्ड। उनकी सैलरी हमेशा फिक्स्ड रहेगी क्योंकि कंपनी उनको जितना ऑफर करेगा वही सैलरी उनको रेगुलरली मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कंपनी में क्या हो रहा है, एंटरप्रेन्योर एक एम्प्लॉय है तो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो उसको सैलरी फिक्स्ड मिलती रहेगी, ठीक है। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स का सैलरी पूरे प्रॉफिट पे डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ भी या नहीं हुआ। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपकी अर्निंग कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। तो आई गेस डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर क्लियर हो गया सबको? एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड
entrepreneurs and manager. अच्छा, before starting this differences, I just want to know who are managers. कौन होते हैं मैनेजर? और मैनेजर से पहले एक और क्वेश्चन आता है, what is the meaning of management? Who is going to tell me about it? मैनेज, रेज योर हैंड, ठीक है? अपनी आप ऐसे ही मत बोलना, रेज कीजिए हैंड, फिर बताइएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, because you all are students of management, that's why I'm asking. Yes, Sakshi? Management is the process of planning, organizing, staffing, directing, and controlling them. Very good. Yes, Ruchi? Ma'am, management is the art of getting things done through others, or management is the optimum utilization of natural resources. Very good. दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन I just want to tell you that management is basically, it is a process of utilizing the resources, optimum utilization of resources for finally achieve the organizational goal. Organization के goal को achieve करने के लिए हमारे पास जितने resources हैं, human resources, financial resources, उसको हम कैसे utilize करते हैं ताकि हम finally achieve कर पाए अपने goal को. और जो भी ये चीजें बताई, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ये सारे के सारे फंक्शंस हैं, ठीक है? सो इन शॉर्ट दीज बोथ एक साथ अगर ले ले तो इट इज मैनेजमेंट, इसको हम मैनेजमेंट बोलेंगे, ठीक है? अब मैनेजर्स कौन होते हैं? मैनेजमेंट में आपके 3 लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. तो जो टॉप लेवल होते हैं, जैसे सीईओ हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, दे आर मेकिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दीज थिंग्स? मैनेजर्स. यानी मैनेजर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, इसको देखते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. एंड दे आर स्किल्ड पीपल, दे आर इंटेलिजेंट एंड दे आर स्किल्ड एज वेल. इंटेलिजेंट होंगे, स्किल्ड होंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे, ठीक है, अपने फील्ड में. इट्स नॉट अबाउट दैट वन सिंगल पर्सन इज एबल टू डू एवरी वर्क. इट इज ओनली पॉसिबल विद एंटरप्रेन्योर्स, बट इट इज नॉट पॉसिबल विद द मैनेजर. इफ द पर्सन इज स्पेशलाइज्ड इन मार्केटिंग, दैट पर्सन इज एलिजिबल टू बिकम मार्केटिंग मैनेजर ओनली. आई बात समझ में? तो अपने अपने फील्ड को प्रॉपरली मैनेज करना, पॉलिसीज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना, रेगुलेट करना डे टू डे ऑपरेशन को, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर्स. और अपने सबऑर्डिनेट के साथ कोऑर्डिनेट करना, उनके साथ काम करना. तो ये होते हैं मैनेजर. आ गई बात समझ में? मैनेजर कौन होते हैं? क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ठीक है. तो चलिए अब हम डिफरेंसेस देखते हैं. अब चल के, ठीक है, मैनेजर कौन होते हैं क्लियर हो गया. एंटरप्रेन्योर तो पहले से पता है कि कौन है. चलिए, अगर हम डिफरेंसेस देखें मैनेजर्स और एंटरप्रेन्योर्स के, तो आप लिखिए इसमें कुछ पॉइंट्स, मैं बताते चलती हूँ आपको. ओके, सो एंटरप्रेन्योर्स कौन होता है? फाइनेंशियल रिस्क टेकर, जो आपकी डेफिनेशन है नॉर्मल, जो बिजनेस को स्टैब्लिश करता है, बिजनेस ऑन करता है. और मैनेज, देखो, और मैनेजर्स कौन होते हैं? बेसिकली दोज हु आर कंट्रीब्यूटिंग इन functions of management, like controlling में जिनका participation हो, जो administration को control करे, policies को implement करे, ठीक है? तो manager में लिखिए they are the individual, मतलब managers are individual, is an individual who takes the responsibility of controlling, regulating and administration से बना है, administer से बना है the organization, ठीक है? मतलब एडमिनिस्ट्रेट करे, जो आपके कंपनी को कंट्रोल करे, जो रेगुलेट करे, जो पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करे, दे आर मैनेजर, ठीक है? सो मैनेजर का काम है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, डे टू डे ऑपरेशन वगैरह को देखना, और एक एंटरप्रेन्योर का काम है अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना, स्टार्ट करना. आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया दोनों पॉइंट? Yes, ma'am. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज,
अब फोकस दोनों का किस में होता है, यानी कि अगर मैं बात करूं एक एंटरप्रेन्योर का तो उसका फोकस किस में है, आपके मैनेजर का फोकस किस में है, तो दोनों कोई ना कोई चीज में फोकस्ड होते हैं। अच्छा, आप लोग का फोकस किस में है, पढ़ने में है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, यस मैम। ओके, तो एंटरप्रेन्योर्स का काम है, फोकस है बिजनेस स्टार्टअप पे, मतलब बिजनेस को शुरू करने में उसका फोकस है। आपके मैनेजर का फोकस किस में है, ऑन गोइंग ऑपरेशन को हैंडल करना, भाई कंपनी कैसे चल रहा है, काम कैसे चल रहा है, जो एम्प्लॉइज है वो काम कर रहे हैं कि नहीं, मार्केटिंग का काम जो भी था हमारा टारगेट पूरा हुआ कि नहीं, तो उनका ऑन गोइंग प्रोसेस पे फोकस होता है। लेकिन जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको बिजनेस को स्टार्ट करने पे फोकस होता है। आई बात समझ में? क्लियर हो मैम गया? बिजनेस को एक्सपेंड करने में भी ना। हाँ, बिजनेस को एक्सपैंड करने में फोकस होगा, बिजनेस को स्टार्ट करने में फोकस होगा एंटरप्रेन्योर का। और आपके मैनेजर्स का जो डे टू डे के फंक्शंस जो चल रहे हैं कंपनी में, प्रॉपर्ली वो मैनेज हो रहे हैं या नहीं, ठीक है? आगे बात समझ में? ठीक है, तो फोकस एंटरप्रेन्योर का होगा बिजनेस को स्टार्ट करना, बिजनेस स्टार्टअप, और मैनेजर का होगा ऑनगोइंग ऑपरेशन को हैंडल करना। अच्छा, अब यहां पर एक सिमिलैरिटी आती है एंटरप्रेन्योर और आपके मैनेजर में। एंटरप्रेन्योर्स और मैनेजर में क्या सिमिलैरिटी, कि दे बोथ आर एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर आप एंटरप्रेन्योर्स और मैनेजर में भी ये लिख सकते हो कि एंटरप्रेन्योर्स आर इंडिपेंडेंट पर्सन, एंड वहीं पर आपके जो मैनेजर है वो कौन है, दे आर बेसिकली एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? यस हो गया। नेक्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका अप्रोच कैसा है टास्क को लेके। अच्छा, टास्क का मतलब क्या होता है, जैसे होमवर्क होता है ना घर पे काम, ठीक है, घर पे काम दिया जाता है स्कूल से कॉलेज से, तो दैट इज टास्क। अभी जैसे तुम लोगों को मैंने काम दिया है कि पढ़ाई करो क्योंकि टेस्ट है 28 को, है ना, मार्क्यू है। तो अभी जो टास्क है, अगर बात की जाए टास्क कैसा होता है, अप्रोच कैसा है टास्क के लिए, तो आपके जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं दे आर समहाउ वर्किंग इन इनफॉर्मल वे एज वेल। मतलब जरूरी नहीं कि हर चीज फॉर्मल तरीके से, ऐसा जरूरी नहीं है, वो इनफॉर्मल वे में भी अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे, फ्रेंडली अप्रोच भी रखेंगे। ठीक है, फ्रेंडली अप्रोच समझ रहे हो, अगर उनके पास कोई फंड है, फंड इन्वेस्टर्स है, तो दे विल इवन अप्रोच देम इन अ फ्रेंडली वे। ठीक है, तो इनफॉर्मल उनका जो काम होगा इनफॉर्मल होगा, क्योंकि वो अपने टीम मेंबर्स को कैसे रखेंगे, पार्टनर्स की तरह कंसीडर करते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। लेकिन मैनेजर जो है वो बिल्कुल फॉर्मली सब काम को करेंगे। फॉर्मल इसलिए होगा क्योंकि जो भी चीज वो करेंगे वो सब रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज के हिसाब से करेंगे। सारी बात समझेगा। मैं एक एग्जांपल लूं एचआर मैनेजर का। अच्छा, एचआर का काम क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स क्या करते हैं, हायर करने का मैम, वेरी एम्प्लॉय हायर करने का। रिक्रूट करना, हायर करना, ये काम करते हैं। अब मान लीजिए कि एचआर है किसी कंपनी में, कोई पर्सन आया, उस पर्सन को बोला, उसने कह रही तुम यू आर माई फ्रेंड, आई विल गिव यू सैलरी 1 लाख रुपीज। ठीक है, दूसरा कोई आया, ओ यू आर नॉट माई फ्रेंड, आई एम गोइंग टू गिव यू 20,000 रुपीज। सो इज दिस सिचुएशन इज पॉसिबल इन एनी कंपनी? इस तरीके का सिचुएशन पॉसिबल है? नहीं। No, ma'am. अगर कोई मैनेजर है, एचआर मैनेजर है, तो पहली चीज वो रिक्रूटमेंट कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से करेगा। कंपनी किसके लिए कितना सैलरी रखी है, जैसे अनएक्सपीरियंस पर्सन के लिए 20, एक्सपीरियंस पर्सन मोर देन 5 इयर्स के लिए 50, इस तरीके से अगर उन्होंने सैलरी डिस्क्राइब कर रखा है तो ये डिसीजन आपकी कंपनी नॉर्म्स के हिसाब से लिया जाएगा, है ना। फ्रेंडली अप्रोच आपका नहीं होगा रिक्रूटमेंट के में, किसके थ्रू, एचआर मैनेजर के थ्रू। तो मैनेजर्स जो भी होंगे वो फॉर्मली बिजनेस में काम करेंगे, कोई भी इनफॉर्मल तरीका वो यूज नहीं करेंगे। कंपनी जो भी कहेगा, जैसा भी पॉलिसी बनाएगा उसी से चलेंगे, ब्रीच नहीं करेंगे, मतलब चीजों को तोड़ेंगे नहीं, पॉलिसीज को तोड़ेंगे नहीं, अपने तरफ से कुछ एडिशनल इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। यस, बट दे कैन इंप्लीमेंट द डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, बट कोई मोडिफिकेशन और बदलाव वो अपनी तरफ से नहीं ला सकते हैं। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? तो उनका क्या होगा स्टेटस, मतलब उनका जो आप बोल सकते हैं टास्क के लिए अप्रोच क्या होगा, कैसे वो काम कंप्लीट करेंगे। एंटरप्रेन्योर्स दे कैन डू इन द इनफॉर्मल एंड एज वेल एज फॉर्मल वे, बट जो आपके मैनेजर्स होंगे दे आर स्ट्रिक्टली फॉलो द फॉर्मल वे, हमेशा स्ट्रिक्टली फॉर्मल तरीके से काम करेंगे। स्टेटस तो मैंने बता ही दिया कि एक ओनर और फाउंडर होगा, एक एम्प्लॉय होगा। रिवॉर्ड की बात करें
तो रिवॉर्ड एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रॉफिट होता है, मैनेजर्स के लिए सैलरी होगा। डिसीजन मेकिंग की अगर बात करें तो डिसीजन मेकिंग जो है वो पूरा का पूरा एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में होगा, पूरा का पूरा इनिशिएटिव लेना एंटरप्रेन्योर का काम होगा। लेकिन जो मैनेजर्स होंगे दे विल बेसिकली गिव एडवाइस एंड दे आर कैलकुलेटिव इन नेचर, मतलब वो प्रॉफिट लॉस ये सब चीज का डेटा वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं आपको, किसको, कंपनी को, लेकिन वो प्रॉपरली डिसीजन नहीं ले सकते 100%। अच्छा, नेक्स्ट वन इज रिस्क ओरिएंटेशन की बात करें तो क्या है, रिस्क टेकर कौन होता है आपका, एंटरप्रेन्योर्स, और रिस्क टेकर कौन नहीं होगा तो आपका मैनेजर। ठीक है, ओके। एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक? किया किसी को भी कोई डाउट है एंटरप्रेन्योर मैनेजर एंटरप्रेन्योर में? नो मैम। No, ma'am. No. एकदम क्लियरली समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, चलिए अब हम लोग जो टॉपिक करने वाले दैट इज बायजूस, एंड इवन टुडे आई एम अनाउंसिंग दिस कि नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट EDII एंड IIE। अब EDII और IIE क्या है? आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1983 में जो गुजरात में स्टैब्लिश हुआ, कैसे एडमिशंस लेता है, क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल कराता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, और कौन कौन से एंटरप्रेन्योर्स जो है वहां से निकले हैं बनकर, मतलब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बने हैं EDII के थ्रू या EDII से कोर्स करने के बाद, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और IIE इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्लियर है, गुवाहाटी। अब ये कैसे स्टैब्लिश हुआ और इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, वी आर गोइंग टू कवर दीज टू टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद बायजूस। रविंदर बायजूस फाउंडर। ओके, म्यूट रहिए बच्चे। चलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं बायजूस को पढ़ते हैं, बायजूस कैसे शुरू हुआ, हाउ इट वाज स्टार्टेड। अच्छा, लेट मी टेल यू दैट बायजूस ने भी हाल फिलहाल में आकाश इंस्टीट्यूट को कंक्वेयर किया है। आकाश इंस्टीट्यूट एक वन ऑफ द रिनाउंड इंस्टीट्यूट है आपके मेडिकल प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, और इंजीनियरिंग भी करवाते हैं लेकिन मेडिकल प्रिपरेशन के लिए दे आर वेरी मच रिनाउंड, ठीक है। तो बायजूस को लाने का क्या रीजन था और ये किसके द्वारा फाउंड किया गया? तो बायजूस को इज फाउंडेड बाय बायजू रविंद्रन। बायजू रविंद्रन ने इसको फाउंड किया है 2011 में। सो इट इज नॉट अ वेरी ओल्डर कंपनी बट इट इज स्टार्टेड नियर बाय 2010-11, ठीक है। तो 2011 में बायजू को स्टार्ट किया गया, बायजूस को बायजू रविंद्रन के द्वारा, ठीक है। और वो इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर बन गए, उनके पास $3.05 बिलियन का नेट वर्थ है। वो भी अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स लिस्ट। फोर्ब्स लिस्ट जो है वो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन का लिस्ट निकालता है हर साल। तो 2020 के हिसाब से इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर में आपके कौन आए? बायजू रविंद्रन, ठीक है। और बायजू का जो लर्निंग ऐप है, ऐप मतलब जो एप्लीकेशन है, वो इंट्रोड्यूस किया गया 2015 में। अब एक्साइटिंग जर्नी कैसे शुरू हुआ बायजूस का, और बायजू रविंद्रन की थोड़ी सी हम बात करेंगे, उनके बैकग्राउंड के बारे में। तो इनकी स्टोरी स्टार्ट होती है, ही वॉज बोर्न इन 1980 इन अ मलयालम फैमिली, अ मलयाली फैमिली एट अजीकोट, ठीक है। अजीकोट एक जगह है आपके केरला के आसपास, मलयालम फैमिली में बायजू रविंद्रन का बर्थ हुआ, ठीक है। कोस्टल विलेज है, एक एरिया। कोस्टल विलेज समझते हो, जो समुद्र के किनारे होता है, तो एक विलेज है केरला में वहां पर। तो उनकी जो उनका जो अपब्रिंगिंग हुआ एक जॉइंट फैमिली में हुआ, और जहां पर उनके फादर, सिस्टर, ब्रदर, मदर सब लोग साथ रहते थे। उनके जो पेरेंट्स, मदर एंड फादर, बोथ आर टीचर्स, बोथ वर टीचर्स, दोनों टीचर्स थे, दोनों पढ़ाते थे बच्चों को। उनके फादर का नाम था रविंद्रन और उनकी मदर का नाम था शोभानवली, ठीक है। उनके फादर एक कम्युनिस्ट थे और उनकी रिटायरमेंट हो गई एज अ फिजिक्स टीचर, और उनकी मदर जो है वो रिटायर्ड हुई एज अ मैथमेटिक्स टीचर। अब बायजू रविंद्रन जो थे, उनकी जो पढ़ाई हुई थी वो वहीं लोकल एक मीडियम, लोकल मलयालम एक मिनट, लोकल आपके वहीं स्कूल में उनकी एजुकेशन आगे बढ़ी। मीडियम स्कूल में अजीकोट में ही उनकी पढ़ाई हुई स्टार्टिंग की,
क्योंकि केरला में ही उनके दोनों पेरेंट्स जो थे वो टीचर्स थे, और बाद में उन्होंने एजुकेशन लिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया गवर्नमेंट कॉलेज से, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नूर से, कैलिकट यूनिवर्सिटी से। बचपन में उनको काफी ज्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, खेल कूद में। अच्छा, तुम लोग में से कितने लोगों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन गेम्स? सनी, क्या अच्छा लगता है बेटा? क्रिकेट, वॉलीबॉल मैम। वॉलीबॉल। एंड व्हाट अबाउट यू सतीश? सतीश, सृष्टि, क्रिकेट। सतीश, बैडमिंटन। सृष्टि को बैडमिंटन पसंद है और सतीश को क्रिकेट। क्रिकेट। So everyone is very much interested. Yes, Ankit, you want to say? क्या पसंद है अंकित? मैं पूरा स्पोर्ट्स ही पसंद है हमको। पूरा स्पोर्ट्स। And what about you, कौशल? Cricket, ma'am. Cricket. शुभम? क्रिकेट। रुचि? मैम बैडमिंटन। बैडमिंटन। शुभम? शादी? Ma'am, badminton. Okay, so what I observed that most of the boys said that ma'am cricket, volleyball, and girls majority का था badminton. So in short, we understand that majority of the people, they always like something sports. Even I was also the athlete. ठीक है? So यहाँ पर same situation का भी था, इनको sports में बहुत interest था। अब जब हमने MS धोनी मूवी देखी थी, then we understand that what is the value of sports nowadays, right? So sports पे भी concern होना अच्छी बात है। तो ये इनके पेरेंट्स इनका बहुत सपोर्ट करते थे स्पोर्ट्स को लेकर के। They want कि स्पोर्ट्स में भी अपना करियर अगर बनाना चाहते हैं तो वो कभी रोकते नहीं थे। Being a parents, they always motivate them. ठीक है? और ये बहुत सारे गेम में अच्छे थे, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। स्कूल और कॉलेज डेज में he was basically playing all these games. His parents are encouraged him, उनको हमेशा encourage किया, मोटिवेट किया। लेकिन एक लाइन तो हमने हमेशा अपने पेरेंट्स से सुना है, पता है क्या लाइन? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो ये जो लाइन था, that is somehow demotivating us to do something in sports. But his parents basically always motivate him. But उनके पेरेंट्स के बोलने पर भी उनका कभी कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि वो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते थे। मतलब उनका स्पोर्ट्स अच्छा लगता था, लेकिन वही पैशन उनका नहीं था कि मैं स्पोर्ट्स को ही आगे लेकर चलूं, अपना करियर बनाऊं। लेकिन वो एक अच्छा करियर बनाना चाहते थे, एक बेटर उनको लगता था कि मैं करियर बना सकता हूं मेडिकल और इंजीनियरिंग में। तो वो अपने करियर को का डायरेक्शन उन्होंने किधर मूव कर दिया? मेडिकल और इंजीनियरिंग की तरफ। एंड ही चूज द मैकेनिकल इंजीनियर, और उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया कॉलेज से। जब उनकी इंजीनियरिंग स्टडीज कंप्लीट हो गई, पढ़ाई खत्म हो गई, तो बाइजू को एक बहुत अच्छा जॉब मिला मल्टीनेशनल शिपिंग फर्म में। बहुत अच्छी जॉब उनको मिली, बढ़िया जॉब लग गई सर्विस इंजीनियर की तरह। और उसके बाद सर्विस इंजीनियर थे, शिपिंग में मिला, तो वो हमेशा इधर उधर वर्ल्ड में ट्रैवल करते रहते थे। ठीक है? तो वो ट्रैवल करते थे, अच्छा खासा उनका लाइफ चल रहा था। He was a bright student, अच्छे बच्चे थे, टैलेंटेड थे, लोग अप्रेस करते थे कि भाई पढ़ने में अच्छे हैं। उनके कुछ दोस्त थे जो हमेशा उनसे MBA एग्जाम के लिए वो प्रिपरेशन करना चाहते थे। अच्छा, मैं बता दूं कि MBA एग्जामिनेशन जो कैट मैट के थ्रू होता है, उसमें मैथ्स भी आपका बहुत अच्छा खासा पोर्शन आता है, मैथ्स का भी। ठीक है? तो यहाँ पर उनके कुछ दोस्त थे, उन्होंने क्लोज फ्रेंड्स थे, वो चाहते थे कि बाइजू जो है उनकी MBA एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन में हेल्प करे। अब बाइजू जो थे वो बहुत अच्छे थे मैथमेटिक्स में, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने दोस्तों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब आप लोग में से कितने बच्चे हैं जो दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने फ्रेंड्स को पढ़ाते हो एग्जामिनेशन से पहले? हाउ मेनी ऑफ यू? रेज योर हैंड। सन्नी, किसको पढ़ाते हो आप? मैम दूसरे क्लास को। दूसरे क्लास को, वेरी गुड। तो कुछ ऐसे उनमें भी वही क्वालिटी थी। ही इज अ वेरी गुड इन मैथमेटिक्स एंड ही स्टार्टेड बेसिकली टीचिंग देयर फ्रेंड्स। अब वो टीचर तो चॉइस से बने, ठीक है, लेकिन एंटरप्रेन्योर वो चांस से बन गए। बाइजू ने क्या किया? ही वाज थिंकिंग कि जो मेरे फ्रेंड्स एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो चलो मैं भी एग्जामिनेशन दे देता हूँ। एंड बाइजू ऑल्सो अटेम्प्टेड द एग्जाम अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ उन्होंने भी एग्जाम दे दिया मस्ती में। ही वाज नेवर थिंक कि ही वांट टू डू समथिंग इन दैट, बट एकदम ऐसा था कि चलो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी देखता हूँ एग्जाम देकर। ठीक है?
तो he was amazed, मतलब he was shocked because he got 100% marks. सोच रहे हो आप, 100 परसेंटाइल आया था उनका फाइनल एग्जाम में। अब जब ये रिजल्ट देखा उन्होंने, तो उनके फ्रेंड्स ने बोलना शुरू किया कि तुम कोई कोचिंग क्लास टीचिंग क्यों नहीं शुरू करते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट खुद इतना अच्छा है, तुम इतना अच्छा पढ़ाते हो। तो उनके फ्रेंड्स ने उनको बहुत इंस्पायर किया एंड ही एग्रीड, और उन्होंने ये बात को मान लिया कि यस आई एम वेरी गुड इन दिस फील्ड, तो आई जस्ट नीड टू बेसिकली प्रोसीड माई करियर इन दिस, राइट। एंड उसके बाद उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है, रिजाइन कर दिया, अपने हाईली पेड जॉब को छोड़ दिया और वो कोचिंग क्लास लेना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब कोचिंग क्लास वो कहाँ से शुरू किया, वो ध्यान से सुनिएगा कि बाइजू जो थे वो अपने टेरेस पे, अपने छत पर पढ़ाते थे फ्रेंड्स के घर पे, और वहां से उनकी एक जर्नी शुरू हो गई। मतलब जहां दोस्तों को ग्रुप में बैठकर जब हम छत पे बोलते हैं ना पढ़ाते हैं, तो वहां से उनकी जर्नी शुरू हुई और उन्होंने बाइजूस को बेसिकली इंट्रोड्यूस किया। स्टार्टिंग में जो बाइजू थे उन्होंने एकदम से बाइजूस कंपनी की तरह स्टार्ट नहीं किया था। स्टार्टिंग में बाइजू जो थे ही वाज ओनली टीचिंग एमबीए स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, मैं बता दूं, बाइजू नाम है फाउंडर का और उनका जो कंपनी दैट इज बाइजूस, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, तो बाइजू जो थे उन्होंने शुरू किया एमबीए एस्पिरेंट्स को पढ़ाना, जो एमबीए के एग्जामिनेशन देना चाहते थे, कैट मैट के एग्जामिनेशन देना चाहते थे, उनको उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। सो बाइजू स्टार्टेड रनिंग फुल टाइम कोचिंग क्लास, मतलब पूरा समय वो अपने कोचिंग क्लास को देते थे। स्टार्टिंग में एक वीक जब उन्होंने ये कोचिंग क्लास स्टार्ट किया, तो एक वीक उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, जैसे कैसे बोलते हैं डेमो क्लास के लिए, याद होगा आप लोगों को, डेमो क्लासेस के लिए बोला जाता है ना कोचिंग सेंटर में आज भी, कि 2-3 क्लास लीजिए एंड देन आफ्टर यू कैन टेक द एडमिशन। तो यहाँ पर 7 days वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने पढ़ाया एंड ही डिड a very so many challenges even he faced during the entrepreneur। और इनका जो शुरुआत एक टेरेस से हुआ था, क्लासरूम की तरह एक टेरेस से शुरुआत हुआ एंड देन दे कन्वर्टेड टू द ऑडिटोरियम। अगर हम बात करें आज बाइजू की, तो मतलब जैसे जैसे मतलब बाइजूस, अगर मैं एक पूरी फील्ड की बात करूं, बाइजूस कंपनी की बात करूं, तो अभी आपको मैं बता दूं कि अभी इन्होंने अपने BLC ओपन करना शुरू किया है। पता है आपको, बाइजूस लर्निंग सेंटर। पहले सबसे पहले इनका पूरा ऑफलाइन क्लासेस ही चलता था एक कोचिंग सेंटर की तरह, बीच में वो ऐप लेकर आए, उनका पूरा क्लास ई लर्निंग में कन्वर्ट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली वो पढ़ाते थे। अब अगेन दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द BLC, बाइजूस लर्निंग सेंटर की तरह बहुत सारे जगह पे स्टैब्लिश होना शुरू हो गया है इनकी क्लासरूम्स, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सुनिए ध्यान से यहाँ, कि एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रू, मतलब जैसे जैसे बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने लगे, वैसे वैसे बाइजू जो है ही स्टार्टेड हिज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्म्स अंडर द नेम ऑफ बाइजू। फिर उन्होंने एक टेक्नोलॉजिकल फर्म जो था एस्टैब्लिश किया, पहले कोचिंग सेंटर की तरह चलता था, और फिर उन्होंने उसका नाम मतलब एक नाम दे दिया, कंपनी का नाम दे दिया, और उसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया, यानी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया अपनी कोचिंग क्लासेस को 2011 में। और उन्होंने एक टैगलाइन यूज किया जिसके थ्रू पोजिशनिंग करना शुरू किया उन्होंने नाम क्या दिया, फॉल इन लव विथ टीचिंग, फॉल इन लव विथ लर्निंग, मतलब सीखते चलो, मतलब यू विल लव टू लर्न न्यू थिंग, नई चीजों से, मतलब पढ़ाई से तो बच्चे भागते हैं, बट विद दिस टैगलाइन दे स्टार्टेड डूइंग पोजिशनिंग, फॉल इन लव विथ लर्निंग। एंड उन्होंने विथ द हेल्प ऑफ सम स्टूडेंट्स हु हैड जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIM, अब आप सोचिए कि यहां से पढ़कर बच्चे ने कहा एडमिशन लिया, IIM में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। तो इनके कुछ फ्रेंड्स थे, स्टूडेंट्स थे, नॉट फ्रेंड्स, जो इनसे पढ़ करके जिन्होंने वहां से ग्रेजुएशन कंप्लीट, पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया, MBA कंप्लीट किया, उनके थ्रू इन्होंने एजुकेशनल कंटेंट बनाना शुरू किया, मतलब एजुकेशनल कंटेंट, क्या क्या चीजों को पढ़ाया जा सकता है बच्चों को, वो इन्होंने उनके साथ मिलकर के रेडी करना शुरू किया। He moved his class from terrace to a classroom, मतलब ये उस समय तक क्लास जो था उनका लगभग टेरेस एरिया, खुले एरिया में चल रहा था, फिर उन्होंने क्लासरूम में उसको कन्वर्ट किया एंड ही स्टार्टेड हिज कोचिंग क्लास विद जस्ट 2 लाख रुपीज। और इन्होंने जब अपना कोचिंग क्लास स्टार्ट किया था तो सिर्फ 2 लाख रुपए से इन्होंने इसकी शुरुआत की, ठीक है। बाइजू जो थे दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग ऑनलाइन वीडियोस, उन्होंने ऑनलाइन वीडियो स्टार्ट कर दिया प्रोवाइड करना,
और कैट बोल सकते हैं फॉर कैट, मैंने आपको बताया था ना कैट एमबीए के लिए जरूरी है, आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम बायजू जो है उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी टीचिंग को स्टार्ट किया 2009 में, और इस मेथड के थ्रू बायजू के पास बायजू रविंद्रम जी के पास लगभग 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे जो उनके साथ ऑनलाइन जुड़े हुए थे, और वो कहाँ से थे, मुंबई, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई। और 2015 में ही बेसिकली इंट्रोड्यूस द लर्निंग ऐप इन 2015 दैट इज बायजूस, ठीक है। आप लोग में से बहुत लोग के स्टूडेंट के मोबाइल में भी वो ऐप होगा, ठीक है। एंड इसके बाद इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को, मतलब पहले एक सिर्फ कैट का प्रिपरेशन कराते थे, फिर इन्होंने इसको एक्सपैंड कर लिया और मल्टीपल कोर्सेज करवाना शुरू किया, कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कराना शुरू किया। जैसे कि इनके पास आपका नीट एग्जामिनेशन जो आपके मेडिकल एंट्रेंस के लिए होता है, नेट एग्जामिनेशन जो टीचिंग के लिए होता है, प्रोफेसर के लिए होता है, ठीक है, कैट जो एमबीए के लिए होता है, उसके बाद ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट जीमैट जिसको कहते हैं, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग के लिए होता है। सो दे आर बेसिकली प्रोवाइडेड मल्टीपल, दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग मल्टीपल टाइप ऑफ कोर्सेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऐप। बायजूस जो है एक क्लास से ब्रांड बन गया, सोचिए क्लासरूम है और एकदम से वो ब्रांड बन गया। आज अगर मैं बोलूं आपके कॉलेज से भी बहुत सारे बच्चों की प्लेसमेंट हुई है, बहुत सारे बच्चे बायजूस में गए हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि एक कोचिंग क्लास ने कितना एम्प्लॉयमेंट, कोचिंग क्लास से एक ब्रांड में कन्वर्ट और एक ब्रांड से एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कन्वर्ट हो गया। बहुत सारे आज भी लोग इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस लर्निंग ऐप के लगभग 3.5 लाख एनुअल सब्सक्रिप्शन है लगभग, और 40 मिनट्स में आप सोचिए कि यहाँ पर मतलब 40 मिनट्स में मतलब एवरेज है लगभग 40 मिनट में इतने सारे लोग जुड़ जाते हैं। हिज लर्निंग ऐप एंड मोर देन 3.50 लाख एनुअल सब्सक्रिप्शन that used to learning app for an average of 40 minutes a day and 6 million downloads, इनका 6 मिलियन लगभग डाउनलोड है आपके ऐप का। उसके बाद बायजूस का सबसे अच्छा बेनिफिट ये हुआ कि जो लोग बहुत ही रूरल एरियाज में, दे आर आल्सो एबल टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट, एंड दे हैव इवन द टीचिंग मीडियम इनके पास मल्टीपल है, दे आर बेसिकली टीचिंग इन द हिंदी लैंग्वेज एज वेल, इन इंग्लिश, इन हिंदी, ठीक है। तो जो स्मॉलर टाउन में लोग को एक्सेसिबल नहीं कर पाते हैं कोचिंग क्लासेस को, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं मिलते हैं, उनके लिए बायजूस एक अच्छा ऑप्शन के रूप में आया। क्लियर हो रही है बात, सबको समझ में आ रहा है? अब बायजू जो है वन ऑफ द बोल सकते हैं एक सक्सेसफुल आपका ब्रांड बन चुका है। ये बहुत सारे एडवांटेजेस देता है, 24/7 इनके इंस्ट्रक्टर और क्लासरूम्स अवेलेबल है, असाइनमेंट्स देता है, स्टूडेंट लर्निंग बिहेवियर समझाता है, हर जगह पे एक्सेसिबल है। इनके पास मल्टीपल क्वेश्चंस, क्विजेस ये प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं बायजूस के जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है नॉर्मल लोगों के लिए, जो हम लोग जैसे सबके लिए, पब्लिक के लिए बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, पीडीएफ्स एंड ऑल जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। क्लियर है? एंड साथ साथ में आपके ट्रेडिशनल क्लासरूम कोचिंग से बायजूस बहुत ही सस्ता है। मतलब अगर आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक आईएएस की प्रिपरेशन के लिए देखो तो लगभग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में 2-2.5 लाख रुपए आराम से लेते हैं, एंड दे आर हार्डली टेकिंग 50,000 to 60,000 रुपीज फॉर आईएएस प्रिपरेशन, ठीक है। और बायजूस ने अभी रिसेंटली परचेज किया ट्यूटर विस्टा को, एडुराइट को, ठीक है। और उसके अलावा इनके इंडियन क्रिकेट टीम जर्सी भी इन्होंने स्पॉन्सर किया था बायजूस ने। और इस इनके 2017 में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? शाहरुख खान, वन ऑफ द सेलिब्रिटी। यस मैम। और इनका जो लगभग बात करें 2013 में फर्स्ट जो इन्वेस्टर थे वो थे मोहनदास पाई और रंजन पाई, जिन्होंने 50 करोड़ रुपीस बायजूस के क्लास के लिए इन्वेस्ट किया था, ठीक है। एंड इवन जो मार्क जकरबर्ग है, जो ये मार्क जकरबर्ग, हाँ कौन है ये? फेसबुक का फाउंडर है, सीईओ है। इवन ही, हाँ जो जकरबर्ग है, इन्होंने भी आपको फंड प्रोवाइड किया है बायजूस को। अच्छा, बायजूस का कॉम्पिटिटर कौन हो सकते हैं? मैम ये अनअकैडमी में। अनअकैडमी इज द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ, ठीक है। ओके, सो हाउ इज द स्टोरी? सबको समझ में आए सारे पॉइंट्स? यस मैम। यस मैम। अच्छी मैम, इंटरेस्टिंग थी। इंटरेस्टिंग थी। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, he was passionate in sports, मतलब उनका जो इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में था। he want to make career in the engineering and medical and he become teacher,
So this is a difference or diversification we are able to see in the life of Baiju Ravindra, and how he started this business from a small terrace. He started teaching, and now he have multiple places where the Baijus are providing the BLC facility. मैंने जिसके बारे में बोला establish हो रहा है धीरे धीरे, और साथ में they have multiple students who are basically downloaded this app for getting the benefit. They have multiple products, they have multiple options of the coaching classes, they have multiple courses, they have so many teachers, students, and the full utilization of technology in learning. ये आपको सिखाया किसने? बायजूस ने. क्लियर हो गई बात? समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है जो समझ नहीं आया हो? अच्छा, एक मिनट, मैं अभी आपको रिसेंटली बताती हूँ इसका टर्नओवर क्या है. Just wait for a minute. I am telling you all. Yes, इसका भी वैल्यूएशन है 2021 के हिसाब से. वैल्यूएशन इसका $21 बिलियन दिसंबर 2021 के हिसाब से. सेक्टर है एडटेक, मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी. हेडक्वार्टर इसका है कहां पर? बैंगलोर में. पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, और इसकी पूरी स्टोरी यहां से जो शुरू हुई है 2009 में रविंद्रन ही स्टार्टेड टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर कैट. 2011 में बायजू एक रजिस्टर हो गया कंपनी की तरह. सितंबर 2013 में रेज किया $9 मिलियन फ्रॉम आर्यन कैपिटल. 2014 में लॉन्च टैबलेट लर्निंग प्रोग्राम. ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने कुछ, वहां तो MBA वगैरह की पढ़ाई होती थी ना, अब ये स्कूल लेवल की भी पढ़ाई करवाते हैं. तो ये 8 to 12 की पढ़ाई 2014 में स्टार्ट हुई. जुलाई 2015 में बेसिकली they basically secures $25 million in series of B round led by the Skua Capital. अगस्त 2015 में बायजूस लर्निंग ऐप आया. उसके बाद 2016 में रेस किया $75. 2017 में he acquired the guidance platform of Vidyartha to boost it personalized. 2017 में Harvard Business School जो है उसके केस स्टडी become a case study at, मतलब बायजूस का केस स्टडी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल. जस्ट इमेजिन. ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल है पूरे वर्ल्ड का. वहां पर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया गया. 2017 में बेसिकली इनको 2017 में आपके शाहरुख खान जो है इसके साथ जुड़े एज अ ब्रांड एम्बेसडर. और हाँ, ब्रांड एम्बेसडर. और उसके अलावा 2017 में भी इनको कहीं से फंड भी प्रोवाइड हुआ. ओके, तो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ बायजूस. एनीवन हैव एनी डाउट हु वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक? No, ma'am. सबको समझ में आ गया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so in the next class we are going to understand about the topic. हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? आपका चायोस के बारे में पढ़ेंगे. अब चायोस क्या है तो मैं बता दूं आप लोगों को. इट इज अ चेन. इट इज एक चेन है ये, और ये टी प्रोवाइड करता है. जैसे सीसीडी कैसे कॉफी प्रोवाइड करता है, तो चायोस दे आर प्रोवाइडिंग द टी. चाय जो है, हाँ, दे हैव मल्टीपल वेराइटीज इन दैट, लाइक मसाला टी, हर्बल टी, green tea, multiple type of tea varieties they have. So how this company, even this company was started, we are going to discuss about that. Okay, anyone have any question? No, ma'am. Okay, so